ਹੈਲੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣੇ YouTube ਚੈਨਲ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੰਖਿਆ ਪੱਧਤੀ ਦੀਆਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਟੇਗਰੀਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋੜ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਰਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਫੌਜ ਦੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੈਟ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਬੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕੈਟੇਗਰੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋੜ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਾਡੇ ਫਾਰਮੂਲੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਫਾਰਮੂਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਅਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੈਟੇਗਰੀਜ਼ 'ਚ ਵੰਡਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੌਜ ਦੇ ਜੋ ਪੈਟ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਉਹ ਪੈਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇਹਨਾਂ ਫਾਰਮੂਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਾਰਮੂਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫਾਰਮੂਲੇ ਯਾਦ ਹੋਣੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸੋਲਵ ਵਾਲਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਫਾਰਮੂਲਿਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਫਾਰਮੂਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਫਾਰਮੂਲਿਆਂ ਦੇ ਬੇਸਡ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਪ੍ਰਥਮ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਥਮ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੋੜ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਰਕਮਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸੰਖਿਆ। ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਥਮ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ ਉਹਦੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਿੱਥੋਂ ਉਸ ਸੰਖਿਆ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ प्रथम n पूर्ण संख्याओं का योग। तो n की है वो संख्यावां दी गिनती है। असी इन्हां संख्यावां दी गिनती नूं पिछली क्लास दे विच डिस्कस भी कीता सी। तो प्रथम n पूर्ण संख्याओं का योग बराबर n इंटू n-1/2। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग बराबर n इंटू n+1/2। प्रथम n सम संख्याओं का योग बराबर n इंटू n+1। प्रथम n विषम संख्याओं का योग बराबर n²। प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग बराबर n इंटू n+1 इंटू 2n+1/6। प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग बराबर n इंटू n+1/2 होल स्क्वेयर। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3-4 ਸ਼ਬਦ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲੇ ਸਿਲੇਬਸ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਿੰਦੀ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਯੋਗ ਸ਼ਬਦ। ਯੋਗ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੋੜ ਕਰਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰਥਮ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪਹਿਲੀਆਂ ਰਕਮਾਂ। ਔਰ n ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜੋੜ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਵਰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਕੁਏਅਰ। ਔਰ ਸਕੁਏਅਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੱਖਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਕੁਏਅਰ ਲਾਉਂਦਾ, ਸਕੁਏਅਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਾਵਰ 2, ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਗਰ ਮੈਂ ਪਾਵਰ 2 ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹ ਖੁਦ ਵਾਲਾ ਅੱਖਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ 2 ਵਾਰੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਕੇ ਆਏਗਾ। ਜਿਵੇਂ 2 ਦਾ ਸਕੁਏਅਰ 2 × 2 ਬਰਾਬਰ 4, 3 ਦਾ ਸਕੁਏਅਰ 3 × 3 ਬਰਾਬਰ 9। ਤਾਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵਰਗ ਦਾ। ਵਰਗ ਮਤਲਬ ਸਕੁਏਅਰ ਮਤਲਬ ਪਾਵਰ 2 ਹੋਣਾ। ਔਰ ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਘਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਾਵਰ 3 ਹੋਣਾ। 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 3 ਬਰਾਬਰ 2 × 2 × 2 ਮਤਲਬ 8। 3 ਦੀ ਪਾਵਰ 3 ਹੋਣਾ ਮਤਲਬ 3 × 3 × 3 ਮਤਲਬ 27। ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੰਗ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਫੌਜ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸਿਲੇਬਸ ਸਟਾਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੇਪਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨ ਮਿਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਫਾਰਮੂਲੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪਹਿਲਾ ਆਪਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਜੋੜ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪ੍ਰਥਮ n ਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਜੋੜ ਦੀ, ਤਾਂ ਪਿਛਲੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਜੋ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 0 ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 0 1 2 3 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤਰਫ। ਔਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ 3 ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਾਉਜ਼ ਕਰਦੇ, ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ प्रथम 13 पूर्ण संख्याओं का योग करें। मैं जिन्नी भी वीडियो तैयार करूँगा या जिन्ने भी सिलेबस में असीं करवावांगे
उसनूं असीं जिस तरीके नाल फौज के पेपर दे विच क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिहड़े शब्द वो पूछे जाते हैं उत्थे लिख के आउंदे ने, उन्हां नूं लिख के तुहानूं बोलूँगा और समझना आपां पंजाबी दे विच है। पूर्ण संख्या बारे सानूं असीं जाणू हो गए, योग बारे असीं जाणू हो गए, प्रथम बारे असीं जाणू हो गए। हुण असीं एन नूं कंपेयर करांगे भी सानूं किस तरह दिता जांदा है और असीं फर्क भी जाणांगे कि असीं इन्हां नूं सॉल्व किस तरह करना है। साडे कोल प्रथम 13 पूर्ण संख्यावां नूं जोड़न दा हुण असीं सवाल दे विच प्रथम 13 संख्यावां नूं जोड़न दा इत्थे सवाल नूं करना है। देखो 13 संख्यावां नूं जदों सानूं प्रथम लिख के दिता जाऊगा तां असीं डायरैक्टली जाण जावांगे कि एन की संख्या कितनी है 13। एन का मतलब ही की सी कि सानू उन्हां रकमां की गिनती नूं जानना है जिहड़ियां सानू सवाल दे विच दित्तियां गईयां ने। हुण सानू इत्थे एन की संख्या दित्ती गई है तो दूसरे क्वेश्चन दे विच सानू कहा गया 0 तो लैके 13। 0 तो लैके 13 का मतलब की है कि 0 1 2 3 इस तरह करके 13। हुण इत्थे गिनती है जो साडे कोल वो 0 का करके वध गई, मतलब 1 तो लैके 13 तक साडे कोल कितनियां रकमां हो गईयां 13, और जो 0 ऐड होगी उसकी गिनती नूं असीं ऐड कीता तो एन की संख्या कितनी होगी साडे कोल 14। तीसरा टाइप जो पूछा जाता है 2 से लेकर 13 तक पूर्ण संख्याओं का योग। हुण इहदे विच थोड़ा जा कन्फ्यूजन है कि जो साडे कोल पूर्ण संख्यावां ने वो शुरू हुंदियां साडे कोल 0 तो, लेकिन इत्थे दिता होया 2। इस कैटेगरी की गल असीं नैक्सट वीडियो दे विच करांगे और जिन्ने भी असीं इत्थे जोड़ दे फॉर्मूले करांगे उन्हां दे विच इस तरह की मैं स्टेटमेंट तुहानूं दसदा रहूँगा, क्योंकि इन्हां दी गल आपां करांगे अगली वीडियो दे विच और ये किस तरह सॉल्व हुंदे ने इन्हां नूं देखांगे। फिर जे आपां पहले सवाल की गल करिए तो असीं डायरैक्टली एन की संख्या नूं इहदे विच पुट कर देंगे, क्योंकि सानूं प्रथम 13 संख्यावां बोलिया गया है। तो साडे कोल एन की संख्या 13 आ गई, तो फॉर्मूला की है एन मतलब 13, फिर ब्रैकेट दे विच एन मतलब 13 माइनस 1 बटे 2। साडे कोल की आया 13 गुणे 12 बटे 2। हुण असीं 12 नूं 2 नाल कट्टांगे 6, 13 छिक्के 78। असीं दूसरे सवाल की गल करिए, दूसरे सवाल दे विच साडे कोल की है एन की संख्या नूं असीं पहलां पता कीता, साडे कोल कितना आया सी 14। हुण असीं एन की जगह ते कितना पुट करांगे 14, तो 14 ब्रैकेट 14 माइनस 1 बटे 2, मतलब 14 गुणा दे विच 13 बटे दे विच 2 और 14 नूं 2 नाल कट्टिया 7, 13 7 91। जदों असीं मैथ की गल करते हैं तो सब तो वड्डी ते सब तो जरूरी गल की है कि असीं पहाड़ियां दे नाल बहुत ही चंगे तरीके नाल डील करना है। और जिहड़ी साडी नैक्सट वीडियो आऊगी उहदे विच तीसरी कैटेगरी की गल करांगे और वर्गां की गल करांगे, जिहड़े की है सानूं अद्धी कैलकुलेशन सानूं वो सॉल्व करके देणगे। तो हुण असीं साडी दूसरी कैटेगरी की गल करांगे। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग बराबर n इंटू n+1/2। तो जे असीं प्रथम प्राकृत संख्यावां की गल करिए, शुरुआत साडी कित्थों हुंदी है 1 तो, 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह जाते जाते साडे कोल इनफिनिटी मतलब अणगिनत दे वल नूं चली जाती है। तो इस दे जो सवाल ने साडे कोल 3 तरीकों नाल पूछे जाते हैं फौज दे विच। किहड़े-किहड़े तरीके ने? सेम अपने पूर्ण संख्या की तरह प्रथम 13 प्राकृत संख्याओं का योग करें, योग मतलब जोड़, 1 से लेकर 13 तक प्राकृत संख्याओं का योग करें, ਜਾਂ कई बार वो इस थां ते प्राकृत संख्यावां नहीं भी दिंदा। तो ये सोडे ते डिपेंड करता है कि असी शुरुआती अखर देखना है कि उसकी शुरुआत कित्थों हुंदी है। 1 तो हो रही है तो ओबवियसली ये की होगा प्राकृत संख्या होगी। या तीसरी कैटेगरी जिहदी असी इस वीडियो दे विच गल नहीं करनी, इस क्लास दे विच असी इसनूं डिस्कस नहीं करांगे, इसनूं असी नैक्सट क्लास दे विच करांगे कि कई बार साडे कोल जिहड़ी कैटेगरी की संख्या है वो शुरुआती ना दे के विचालों पुछ लैंदा है। इसनूं असी नैक्सट चैप्टर दे विच जां नैक्सट क्लास दे विच असी डिस्कस करांगे। तो असी इन्हां दोनों क्वेश्चनस नूं सॉल्व करते हैं। जिवें कि असी पूर्ण संख्या दे विच दोने क्वेश्चन सॉल्व कीते सी, उन्हां दे विच साडे कोल फर्क आ रहा सी। तो फर्क किस करके आ रहा सीगा कि साडी गिनती सीगी जिहड़ी मतलब एन की संख्या सी वो की हो रही सीगी चेंज हो रही सी। लेकिन इत्थे जे असी देखिए प्रथम 13 प्राकृत संख्याओं का योग, साडी गिनती कित्थों शुरू हुंदी है प्राकृत दी 1 तो, की आ रहा साडे कोल 1 2 3 4 इस तरह चल के सानू एंडिंग पॉइंट की दिता है, सानू दिता है 13। तो हुण साडे कोल इत्थे एन की जो संख्या है
ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਿਣਤੀ ਵੀ 1 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਕਰਤ ਸੰਖਿਆ ਵੀ 1 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 13 ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਕਰਤ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ? 13। ਤਾਂ n ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਕਿੰਨੀ ਹੋਗੀ? 13। ਅਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇਸ ਨੂੰ ਫਾਰਮੂਲੇ 'ਚ ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। दूसरी क्वेश्चन जे असी गल करिए 1 से लेकर 13 तक प्राकृत संख्याओं का योग करें, ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ 1 ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਐਂਡਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ 13 ਦਿੱਤਾ ਹੈ, n ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 13 ਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ n ਮਤਲਬ 13 ਇੰਟੂ n ਮਤਲਬ 13 ਪਲਸ 1/2। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਇਆ? 13 ਗੁਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 14/2, 14 ਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਕੱਟਿਆ 7 ਆਇਆ, 13 7 91। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਸੀ 0 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 13 ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਇਆ ਸੀ? 91। ਤੇ ਅਸੀਂ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 13 ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਕਰਤ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ? 91। ਤਾਂ ਫਰਕ ਸਿਰਫ ਕੀ ਹੈ ਕਿ n ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ 0 ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਦਈਏ 91 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ 0 ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜ ਦਈਏ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਘਟਾ ਦਈਏ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਬਸ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ -1 ਸੀਗਾ। -1 ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ 0 ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਾਲਤਾ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਕੱਲੇ ਉਹੀ ਅੱਖਰ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਸਾਡੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਅਗਲੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਸਮ ਸੰख्या ਦੀ ਹੈ। प्रथम n सम संख्याओं का योग बराबर n इंटू n प्लस 1। जे असी सम संख्या नूं देखिए तो साडे कोल सम संख्या की जो शुरुआत है वो 2 तो होंदी है। सम संख्या मतलब जिस्त संख्या, तो जोटे वाली रकमां 2 4 6 8 10 12 14 16 इस तरह चलदियां ने। जे असी इन्हां दे जोड़ की गल करिए तो इस कैटेगरी तो भी सानूं 3 तरह के सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन इस दे विच बहुत ज़्यादा फर्क है। जो साड़ियाँ पहलियां 2 कैटेगरीज ने और पहलियां 2 कैटेगरीज तो तुसी की करोगे इनू आसानी नाल समझ सकोगे। तीसरी कैटेगरी की गल मैं एक बार लिख के जरूर दे रहांगा, लेकिन उसनू असीं अगली क्लास दे विच ही डिस्कस करांगे क्योंकि उसनू होर फॉर्मूले नाल सॉल्व किया जाता है। तो साडे कोल पहली जो सवाल की रकम है जो वो पूछी जाती है फौज दे विच, प्रथम 13 सम संख्याओं का योग करें। हुण प्रथम 13 की जे असीं गल करिए, असीं पिछली क्लास दे विच इन्हां दी गिनती कीती सी भी असीं इहनूं किस तरह काउंट करना है। असीं गिनती दे विच सिੱਖਿਆ ਸੀ कि सम संख्यावां ते विषम संख्यावां साडे कोल अद्ध दी गिनती लैके आउंदियां ने जे असीं गल करिए। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਥਮ ਸ਼ਬਦ ਲਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਪੁੱਛੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ n ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹ 13 ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਉਸ ਨੂੰ ਫਾਰਮੂਲੇ 'ਚ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ n × n + 1, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ n ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਭਰਾਂਗੇ 13 + 1, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਇਆ 13 ਗੁਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 14, ਤਾਂ ਗੁਣਾ ਕੀਤੀ 182। ਹੁਣ 13 ਦੀ ਗੁਣਾ 14 ਨਾਲ ਕੀਤੀ, ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਤਾ 182। ਕਈ ਬੱਚੇ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਰੱਟੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਥ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ, ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਹਸਲ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਜੋੜ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਰੋਡਲੀ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮੈਥ ਦੀ PhD ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪੇਪਰ ਕਰੈਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਟ੍ਰਿਕਸ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। 13 ਗੁਣਾ 14 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋੜ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ ਫਿਲਹਾਲ 182। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇਖਾਂਗੇ 1 से लेकर 13 तक सम संख्याओं का योग। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ n ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 13 ਤੱਕ ਸਮ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੇ 13 ਤੱਕ ਗਿਣਤੀ ਲਿਖੀਏ 1 2 3 4 5 6 7 8 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਐਂਡਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇਤਾ 13। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਕੱਢੀਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ 1 2 3, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅੱਧੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਲਾਸਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਸਮ ਸੰਖਿਆ ਬਣੂਗੀ ਇੱਥੇ ਉਹ 12 ਬਣੂਗੀ। ਤਾਂ 12 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਜੇ ਗਿਣਤੀ ਕੱਢੀਏ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣਦੀ ਹੈ 6। ਤਾਂ ਇੱਥੇ n ਦੀ ਜੋ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 6 ਰਹਿ ਗਈ। ਇਹੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਮ ਤੇ ਵਿਸ਼ਮ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਜੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ n ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਆ ਗਈ 6, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਫਾਰਮੂਲਾ n ਮਤਲਬ 6, n ਮਤਲਬ 6 + 1, ਤਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਕੀ ਆਇਆ 6 ਗੁਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣਦਾ ਹੈ 42।
देखो रकमां देखण नूं साडे कोल सेम लगदियां ने। प्रथम 13 सम संख्याओं का योग, इत्थे उन्हें डायरैक्टली n की संख्या मतलब सानू सम संख्यावां की संख्या दस रखी है, गिनती दस रखी है। तो इत्थे भी सानू ऐ लगता है कि इस तरह की रकम है, इसे करके मैं तुहानूं अलग अलग कैटेगरी नूं बना के दस रहा, एक्सप्लेन कर रहा। 1 से लेकर 13 और प्रथम 13 दे विच बहुत बड़ा अंतर है। सानू प्राकृत दे विच यह दिखदा नहीं, पूर्ण दे विच सानू एक 0 की गिनती है उसनूं ऐड करना पैंदा है। लेकिन सम ते विषम संख्यावां जिन्नियां भी ने साडे कोल ओह की करदियां ने, सानू बहुत ज़्यादा अलग लै जांदियां ने। सवाल नूं असीं सॉल्व करन दे विच उसनूं फिर सोची जांदे, साडे कोल इन्ना टाइम भी नहीं हुंदा। दूसरी गल जे असीं करिए अगली विषम संख्या की, उस दे बारे असीं हुण देखदे हां भी साडे कोल किवें असीं उहनूं सॉल्व करना है। तो साडी अगली कैटेगरी है विषम संख्या की। प्रथम n विषम संख्याओं का योग बराबर n स्क्वेयर। n स्क्वेयर का मतलब n गुणा n। तो साडे कोल तीन तरह के क्वेश्चन फिर ने। जिहड़ी तीजी कैटेगरी है असीं बाद दे विच डिस्कस करनी है, असीं दो कैटेगरी नूं इत्थे देखदे हां। प्रथम 13 विषम संख्याओं का योग करें, मतलब डायरैक्टली सानू n की संख्या देती भी 13 है। फॉर्मूले च पुट कर देंगे 13 का स्केयर, जिन्हों स्केयर याद ने वर्ग याद ने वो आसानी नाल इन्हां नूं सॉल्व कर सकता है। 13 का स्केयर साडे कोल की आया 169। जिन्हों नहीं पता लगता भी असी वर्ग किस तरह याद करने ने, वो की करूँगा 13 की 13 नाल गुणा करके भी देख सकता है। दूसरी कैटेगरी 1 से लेकर 13 तक विषम संख्याओं का योग करें। 1 से लेकर 13 तक का मतलब की है 1 2 3 4 5 इस तरह कर दे, सानू एंडिंग वाली जो रकम है वो 13 दी है जो कि विषम है। सानू पता है विषम संख्या की जो गिनती है वो भी की होंगी है अद्धी, तो असी इत्थे 14 नूं काउंट करांगे जो कि सम संख्या है। 14 का अद्ध करांगे साडे कोल कितनियां आ जाणगियां विषम संख्या दे विच 7, जो कि साडे कोल n की संख्या है। असी हुण 7 का स्क्वेयर करांगे, मतलब 7 गुणा 7 जां 7 का स्क्वेयर बराबर 49। तो साडी अगली कैटेगरी है जो प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। तो इसका फॉर्मूला ज़्यादातर ऑप्शन दे विच एज इट इज़ पूछा जाता है, इसके ज़्यादातर सवाल नहीं आते, लेकिन असी इसनूं सॉल्व करांगे क्योंकि दिनों दिन लैवल टफ होंदा जांदा है, तो अपने तो सवाल भी पूछ सकते हैं। संभावना है तो आपां करनी है। डायरैक्टली इसका फॉर्मूला बहुत बारी पूछा गया है और ज़्यादातर बुक्स दे विच यह मिलता भी है आपां नूं प्रीवियस पेपर्स दे विच। तो इसका फॉर्मूला की है n इंटू n+1 इंटू 2n+1 बाय में 6। हुण इसके दो तरीके के सवाल ने जो अज आपां डिस्कस करने ने। प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग करें, या 1 से लेकर 13 तक प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग करें। जिमें कि आपां नूं स्टेटमेंट मिलती है 1 का स्क्वेयर 2 का स्क्वेयर 3 का स्क्वेयर 4 का स्क्वेयर, इस तरह करते करते n का स्क्वेयर इन्हां दा जोड़ करना है। तो प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, इत्थे आपां 13 करते हैं। प्रथम 13 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, मतलब n की संख्या डायरैक्टली कितनी है साडे कोल 13। दूसरी कैटेगरी जो है साडे कोल वो सानू की पूछा गया है 1 से लेकर 13 तक प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग करें। 1 से लेकर 13 तक प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग का मतलब भी साडे कोल की बनता है 1 तो लैके 13 तक दे संख्या, ये भी n की संख्या साडे कोल की हुंदी है 13, क्योंकि प्राकृत संख्या दे विच की है इन्हां दी शुरुआत 1 तो हुंदी है और साडे कोल गिनती की भी शुरुआत 1 तो हुंदी है। इहदे विच साडे कोल कुछ एक्सट्रा ऐड करन दी लोड़ नहीं, कुछ माइनस करन दी लोड़ नहीं। तो साडे कोल दोनों कैटेगरीज़ के अकॉर्डिंग n की संख्या जो 13 ही आउंदी है। तो असीं डायरैक्टली इसनूं फॉर्मूले दे विच पुट करांगे तो की बनता है 13 मतलब n, फिर 13 + 1 मतलब n+1, फिर 2 गुणा दे विच 13 + 1 मतलब 2n+1 डिवाइड बाय में 6। हुण असीं इसनूं सॉल्व करांगे की आया 13 गुणे 14 गुणे 13 दूनी 26 ते 1 27 बटे दे विच 6। हुण असीं इसनूं कट करांगे, साडे कोल की आया 6 नूं ते 14 नूं कट्टिया 2 ते कट्टिया 7 2 ते कट्टिया 3। हुण असीं 3 नूं ते 27 नूं कट्टिया 9 तीए 27। जो भी साडे कोल आउंदा है असीं इसदी गुणा कर देंगे। तो असीं इसदी गुणा की 13 7 91 91 आया 819। तो
ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋੜ ਆਇਆ 819। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਾਕਰਤ ਸੰਖਿਆ ਦੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ n ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਜੋੜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਕਰਤ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ 13 ਦੀ ਅਸੀਂ 7 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ 9 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ 9 ਦੀ 7 ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਫਿਰ 13 ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਨਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ। ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਅਗਲੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਹੈ प्रथम n प्राकृत संख्याओं के गणों का योग। गणा का मतलब किसी भी अखर की पावर 3 होना, जिमें कि असीं इत्थे लिख रखिया 1 की पावर 3, 2 की पावर 3, 3 की पावर 3, 4 की पावर 3, इस तरह करते जो सानू एंडिंग पॉइंट मिलूगा वो संख्या असीं n की पता भी करांगे। दो तरह के सवाल इसके अज असीं डिस्कस करांगे। प्रथम 13 प्राकृत संख्याओं के गणों का योग करें, मतलब डायरैक्टली सानू की दस्या होया है भी n की संख्या कितनी है 13। प्रथम देता मतलब शुरुआती 13 की गल कर रहा है। उस तो बाद 1 से लेकर 13 तक प्राकृत संख्याओं के गणों का योग। इस तो भी सानू पता लगता है कि 1 तो शुरू होंदी है प्राकृत संख्या, एंडिंग पॉइंट 13 दे रखा है। n की संख्या साडे कोल दोनों कैटेगरीज दे विच 13 आउंदी है। तो असीं इत्थों ये भी अंदाजा लगा सकते हैं कि प्राकृत संख्या का जोड़ करो, प्राकृत संख्या के वर्गां का जोड़ करो, जां प्राकृत संख्या के गणां का जोड़ करो। तो n के उपर किसी भी कैटेगरी के विच साडे कोल कोई भी प्रभाव नहीं पैंदा। तो असीं इसनूं डायरैक्टली हुण फॉर्मूले दे विच पुट करांगे। तो साडे कोल की आउंदा है n मतलब 13, फिर n मतलब 13 प्लस 1 डिवाइड बाय में 2 होल स्क्वेयर। हुण असीं इहनूं सॉल्व करदे हां। की आया साडे कोल 13 गुणे 14 बटे 2 सारे दा स्क्वेयर। 2 नूं 14 नाल कट्टिया सानूं मिलदा है 7। 13 साते 91 और 91 का जो स्क्वेयर है साडे कोल, इसकी असीं ट्रिक भी करांगे भी की है ये की हैगा 100 तो 9 गरीब है, तो असीं इहनूं होर 9 गरीब कर देंगे। साडे कोल की बचदा है 82 और 91 का स्क्वेयर है जो साडे कोल कितना आउंदा है 8281। तो इसकी असीं गल करांगे अगली क्लास दे विच भी गल करनी है, और ज़्यादातर असीं ट्रिक वाइज करना है ताकि साडे कोल समा बच सके, असीं पेपर नूं आसानी नाल सॉल्व कर सकीए, दूसरे सबजैक्टां नूं भी असीं टाइम दे सकीए, असीं सोच सकीए उहदे बारे। तो 91 का स्क्वेयर कितना बनता है साडे कोल, ये 9 घट है 100 तो 9 इनू होर घटा दो तो साडे कोल की आया 82, और जिहड़ा 9 घटाया है उहदा स्क्वेयर पिछे लगा दो, साडे कोल की आ गया 81। तो 91 का स्क्वेयर कितना आया 8281। जिहड़े बच्चों नूं इत्थे नहीं समझ आउंदा वो 91 की 91 नाल एक बार गुणा करके बाकी सवालों नूं कर सकते हैगे। और आपां नैक्सट वीडियोज़ दे विच इस दियां ट्रिक्स भी करांगे भी असीं वर्गां नूं किवें करना है। धन्नवाद।